evening everyone, respected dignitaries, esteemed faculty members and my dear friends. On behalf of Vedantan International Business School, I, Arpita Dubey, extend a warm welcome to all of you to today's session on inner compass, mindfulness and emotional intelligence in leadership and law. In today's fast-paced and demanding environment, especially in legal field, we often face pressure, conflicts. This session aims to help us develop self-awareness, emotional balance and clarity qualities that are essential for both effective leadership and professional excellence. Before we begin today's program, I would like to take a moment to introduce you to Vedantan International Business School, established in the year 2004 under the aegis of Rohini Educational Society. Founded in 1983, GIFT stand as a symbol of quality education, innovation and leadership. As a self-financing, ISO certified and NAAC A-grade accredited institution, GIFT is affiliated with Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and approved by All India Council for Technical Education, AICTE, and Bar Council of India. The institution offers a diverse range of programs including MBA, MBA International Business, MBA Integrated, LLM, BBA Honours, and Integrated BBA LLB Honours, and BA LLB Honours. With a strong focus on academic rigor, research, and professional excellence, GIFT has been consistently recognized for its quality standards, having been rated A+ by the State Fee Regulatory Committee of the Government of NCT of Delhi. Graded A by NAAC in its third cycle and awarded the highest grading A by the Joint Inspection Committee of the Government of NCT of Delhi and GTSFB University for over a decade. It has also been ranked among the top B schools in India, including the Times B School Survey 2023. Now coming to the club, which has organized this session, the Spiritual Club of GIFT. This seminar is being organized under the Spiritual Club with the objective of promoting holistic development by integrating spiritual awareness with professional growth. Through this session, we will learn practical strategies for managing stress, improving emotional regulation, and enhancing focus. It will also help us understand the importance of empathy, self-reflection, ethical decision-making in leadership and legal practice. Overall, this session will guide us to develop our own inner compass that shapes our values, behavior, and professional journey. Now it is my privilege to introduce our esteemed resource person for today's session, Dr. Aradhana Sharma ma'am. Our speaker is an experienced professional in the field of clinical psychology, mindfulness training, and emotional intelligence development. With deep insights into human behavior and emotional well-being, the speaker has been actively guiding individuals in building resilience, clarity, and effective leadership skills. Now, to welcome our esteemed guest, I invite Dr. Arpita Sehgal ma'am, the coordinator of Spiritual Club. बच्चों का साइड में Gesture. With great honor, I would now invite our respected resource person, Dr. Aradhana Sharma ma'am, to kindly come forward and share their valuable insights. Let us welcome with a big round of applause, everyone. Good morning, everyone. It's amongst the youth of the nation, and I'm a big advocate of empowering the youth
given a very thoughtful topic to talk on, inner compass. So, मेरा प्रयास रहेगा मैं बाइलिंगुअल रहूं। आप लोग यहाँ क्यों हैं? Why are you here? देखो ये लेक्चर नहीं है, ये लेक्चर नहीं है। आपकी इनर कंपस को मैं रीअलाइन नहीं कर सकती, रीओरिएंट नहीं कर सकती यदि आप पार्टिसिपेट नहीं करें। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज टुडेज सेशन इज अबाउट यू। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट किताबों में क्या लिखा है। टुडेज सेशन इज अबाउट व्हाट इज लाइफ। तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, 2 मिनट लीजिए, आप यहाँ क्यों हैं? केवल आज के लेक्चर के लिए नहीं, आप इस कॉलेज में भी क्यों हैं? हाँ, हम लोग कभी इन विषयों पे सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब से हमें स्कूल में डाला गया था ना, राधा प्री स्कूल में भी डाला गया था, तब से हमें बताया गया था जो कहा जा रहा है वो करो। बस स्कूल जाना ज़रूरी है, कॉलेज जाना ज़रूरी है, डिग्री लेना ज़रूरी है, नंबर आना ज़रूरी है, नौकरी मिलना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। पर हम में से किसी ने अगर ये सवाल पूछा हो क्यों? मम्मी बोलती हैं नवरात्र हैं, या सुबह उठ के स्कूल जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले मंदिर में मत्था टेको, तो आप पूछते हो क्यों? तो यहाँ क्यों बैठे हो, इस बात का जवाब देंगे, उसके बाद मैं शुरू करूँ। Wiser than if you can randomly pick, it would be. हाँ जी, देखो मैं रैंडमली पिक करूँगी तो कुछ लोग शर्माएंगे, कुछ एम्बैरस होंगे, इसलिए वॉलेंटरली करो। 5 मिनट For mental peace and stability. Okay, thank you. Mental peace क्यों चाहिए? आप स्पिरिचुअल क्लब के माध्यम से यहाँ इकट्ठे हुए हो। कल के सरकारी फॉर्म्स में वो नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं है। जब स्पिरिचुअलिटी की भी बात होती है ना तो धर्म से रिलेट कर देते हैं। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी क्या है? इमोशन, डिवोशन, बिलीफ। ओके, अच्छा हम डिवोशन की बात करते हैं तो क्या डिवोशन टुवर्ड्स व्हाट? टुवर्ड्स गॉड, दैट्स स्पिरिचुअलिटी। बहुत लॉपसाइडेड है आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग। आपने स्पिरिट शब्द सुना है? व्हाट इज स्पिरिट? इनर कॉन्शियस या आत्मस्वरूप। ठीक, अब वो आत्मस्वरूप का कोई पंथ होता है? अगर अब आध्यात्मिक उस पे जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअल क्लब की एक्टिविटी है तो उसमें अध्यात्म की बात करते हैं। मैंने सोचा था मैनेजमेंट के एंगल से बात करूंगी, लेकिन मैनेजमेंट का एंगल यहीं से आ जाएगा। हम बात करते हैं ना कोई भी किसी भी चीज की, तो बॉडी माइंड एंड सोल की बात करते हैं। ठीक है, नाउ द सोल और द स्पिरिट। स्पिरिट क्या है? कौन है?
सभी पंथ, सब रिलीजन्स ये कहते हैं कि एक परमात्मा है और हम उस परमात्मा के बच्चे, है ना। तो ये जो स्पिरिट है वो उस परमात्मा का अंश है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो इट इज अबाउट नोइंग दैट इनर गॉड which makes you you, जो आपको आपका अस्तित्व देता है, उसको जानना, वो स्पिरिचुअलिटी। इट हैज नथिंग टू डू विद एनी गॉड क्रिएटेड बाय मैन। भगवान सारे मनुष्य के बनाए गए हैं। कितनी विडंबना है ना, एक भगवान ने हमें बनाया और हमने भगवान बना दिए बहुत सारे, और फिर उस पे हम अपनी स्पिरिचुअलिटी बेस करें। नो, इट इज अबाउट नोइंग हु आई एम। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट नोइंग हु एम आई। तो आपके पास, सबके पास पेपर पेन है? नहीं है तो अपने फोन का नोटपैड खोलो, लिखो कौन हो आप। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। देखिए, आप वकील बनेंगे ना, आपको अपने क्लाइंट से और अपने ओपोनेंट से सवाल पूछने हैं। तो अगर आपको खुद से सवाल पूछने नहीं आते, अच्छे वकील नहीं बन पाओगे। पहले अपने वकील बनो, पहले अपने आप को सॉर्ट करो, मैं कौन हूं। आप केवल ये शरीर नहीं हो जिसका एक नाम है, जिसका एक पता है, जिसकी एक क्वालिफिकेशन है। यू आर मोर देन व्हाट पीपल नो यू टू बी। जो लोग जानते हैं आपके बारे में, उससे ज्यादा हो आप। पर क्या आप अपने आप को जानते हो? कितने लोग यहाँ क्लेम कर सकते हैं कि आप अपने आप को जानते हो? जानते हो क्या हो आप? बताओ। ह्यूमन बीइंग हो वो तो दिख ही रहा सबको। Good. Disciplined in what form, what space. देखिए, यहाँ नंबर्स में आप बहुत सारे हो और यहाँ बैठे हो तो there is a reason, and I'm hoping your attendance and marks are not your reason to be here. अगर आप यहाँ केवल अटेंडेंस या नंबरों के लिए बैठे हो तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी अटेंडेंस लीजिए, लेकिन सेशन डिस्टर्ब मत कीजिए, बातें मत कीजिए आपस में। और अगर आपको बातें करनी है तो यू आर फ्री टू लीव द हॉल, आई वोंट माइंड, क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ उन जागरूक लोगों से बात करने जो सच में जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हो, जो सच में इनर पीस ढूंढने आए हैं। तो प्लीज, एक सिद्धांत है, एक लॉ है, मुझे तो वॉलंटियर्स चाहिए, मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ। अब एक और वॉलंटियर आ जाओ। आपकी फेवरेट मूवी या सीरीज या स्टोरी? Hulk 2008। आपकी? ओके, चलिए, अब आप दोनों मेरे सामने हैं और आप दोनों अपनी अपनी कहानियां दूसरे को सुनाएंगे और दूसरे की कहानी सुनेंगे भी, और सुनने के लिए रुकेंगे नहीं, अपनी कहानी बोलते रहेंगे और दूसरे की सुनते रहेंगे साइमल्टेनियस। 1 मिनट का समय आपका।
सारे पहले शांत हो जाइए प्लीज। मैं क्या कहूँगा? नहीं, आपको कहने से मुझे बोलने का कोई नहीं, आप अपनी बात कहिए। तो 2800 मूवी होती है, उसमें सबसे बढ़िया बात हल्की ये होती है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। आप बोलिए। So the Mansur case आप रुकना नहीं है, तो उसकी होती है वो हल्की पीछे पड़ी रहती है कि हमें इसे मारना है। बहुत सारा ब्लड मिलता है। बट इसमें क्या होता है कि हर अपने आप पे करने जाते हैं गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो जब वो गुस्से पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो उसके पास एक सुपर पावर आ जाती है उसके पास, और वो उसे सोसाइटी के गुड के लिए यूज करता है। आप उधर सुना रहे हो, ये उधर सुना रहे हैं। अच्छा, आपने इनकी क्या बात सुनी और आपने इनकी क्या बात सुनी? नहीं सुनी ना? आप लॉ समझ लो। थैंक यू वेरी मच। लॉ ये है कि आप बोलते हुए सुन नहीं सकते, तो यदि आप बोलेंगे तो आप सुन नहीं सकते, और आप बोल उतना ही सकते हैं जितना आप जानते हैं। पर जब आप सुनेंगे ना, बहुत पॉसिबिलिटी है आप कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू। शांत रहो। जो मेरा मैसेज था वो चला गया, इसलिए मैंने थैंक्स किया। जा नहीं रही मैं, आगे मैं शुरू हो रहा है। तो अब मेरी उम्मीद यही है कि अब आप सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान आपसे भी लेके जाऊंगी मैं, ऐसे नहीं जाऊंगी। और कुछ नहीं तो इन सफेद बालों का ही लिहाज कर लो यार। अब बात हमें करनी है इनर कंपस की। कंपस देखिए सबने? एक दो कंपस होती है, एक तो वो प्रकार होती है ना, और एक होती है डायरेक्शन वाली। देखिए क्या होता है उसका यूज। अभी तो हम लोग जीपीएस लगा लेते हैं कहीं भी जाना होता है, क्यों? नेविगेशन पर्पस से, पर क्यों? नेविगेट तो हम कर ही रहे हैं ना, सड़क पे हैं, चल ही रहे हैं। हम घूमने से बचाता है। अरे आप लोग बड़ा घुमा के बातें बता रहे हो। कंपस में एक फीचर होता है कि आप उसे कहीं भी रख दीजिए, वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट आउट करता है। बाकी चीजें हम उस नॉर्थ से रिड्यूस करते हैं। तो जब हम इनर कंपस की बात करते हैं ना, तो हम अपने इस नॉर्थ को ढूंढने की बात करते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? और वहीं वापस मैं उसी सवाल पे आ रही हूँ, हम यहाँ क्यों हैं? What are we doing here? Why are we here? Doing here तो मेरे को समझ आती है कि अटेंडेंस नहीं पूरी होगी, नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, तो है ना, ये एक कारण है। पर ये डिग्री हमारे लिए जरूरी क्यों है? हम यहाँ क्यों हैं? नहीं सोचा ना कभी, पर ये अब आप लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए। और सबसे अच्छी जगह ये, यहाँ लिख लीजिए और अपने आप से ये सवाल दिन में 10 बार पूछिए, मैं जो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? अगर आपने ये सवाल अपने आप से हर चीज करने से पहले पूछना शुरू कर दिया, आई एम श्योर आप बहुत सारी चीजें जो करते हैं वो नहीं करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें।
तो चलिए सिस्टम ने आपको यहाँ पहुंचा दिया, ये डिग्री आप कर ही लेंगे। फिर क्या? उस कागज के टुकड़े से आप क्या करने वाले? Why? What will this degree, how will this degree make a difference in your life? हाँ जी, क्या परिवर्तन आने वाला है आपके जीवन में इस डिग्री से? What are your dreams? Like if I want to go in litigation, then it will be like certain criteria that I have. अब पता है क्या? थैंक यू। हमें ना एजुकेशन क्या है और क्यों है इससे शुरू करना पड़ेगा। What is education? So you've been in this sector for the last 12-14 years. What is education? अरे सब स्कूल गए हो, कॉलेज जा रहे हो। एजुकेशन क्या है? पढ़ाई लिखाई, वो लिटरेसी है। पढ़ना लिखना सीखना is only literacy. So इस पैरामीटर से हम सिर्फ लिटरेट है, हम एजुकेटेड नहीं है। आप में से कितने लोग टू व्हीलर चलाते हैं? हाथ खड़ा करो। बस इतने ही लोग। और आप में से कितने लोग जो टू व्हीलर चलाते हैं, टू व्हीलर में पीछे बैठते हैं, वो हेलमेट पहनते हैं? और कितने लोग हैं जो हेलमेट नहीं पहनते हैं? यस, ये फर्क है लिटरेसी और एजुकेशन। नहीं, हंसने की बात नहीं है, बहुत सारे रोजमर्रा की चीजें हैं। आजकल एक ट्रेंडिंग वर्ड है सिविक सेंस, जिसमें इंडियंस बहुत सीधे हैं। और ये हंसने का विषय नहीं है। साइलेंस। हम साल में 3 महीने बिल्कुल इमोबाइल हो जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का AQI बहुत पुअर है। गाड़ियां नहीं चल रही हैं और बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें बताई जाती है कि करो और ना करो, पर आप में से कितने लोग ध्यान देते हो? सच बोलना, हाथ मत खड़ा करो, अपने दिल में पूछो। हर वो चीज जो आपको पता है पर आप अपने व्यवहार में नहीं लाते हो, वो सिर्फ आपको ये बताती है कि आप केवल लिटरेट हो, एजुकेटेड नहीं। और मैं हर दिन आउटर रिंग रोड से गुजरती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने से वो यूटर्न लेकर मैं आती हूँ। मेरा क्लिनिक जस्ट अक्रॉस द रोड है, पावर हाउस के सामने। वहां से लौटते हुए मुझे ये यूटर्न लेना होता है, और हर बार, बिलीव मी, हर बार मेरा दिल इतना दुखता है, क्योंकि वहां वकीलों और जजों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, गलत तरह से पार्क्ड होती हैं, रॉन्ग साइड चल रही होती हैं। ये डिग्री लेके अगर आपने लॉ फ्लॉन्ट करना है, I'm sorry, we have failed. And this is an indication towards your inner compass. आप लॉ किस लिए पढ़ रहे हो? एनफोर्स करने के लिए या लॉ का दबदबा दिखाने के लिए लोगों को? इनर कंपास, आपका नॉर्थ पोल।
towards whatever you are doing. जब तक आप अपने आप से ये बेसिक सवाल नहीं पूछोगे ना, यहाँ तो आ गए किसी भी वजह से, किसी ने कहा स्कोप बहुत है, किसी ने कहा जब इसमें एडजस्ट हो ही जाओगे, इसमें ऑनलाइन काम कर सकते हो, इसमें अपना काम कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत चीजों की वजह से आपने लॉ की डिग्री चूज की, लेकिन आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे, दैट हैज टू बी ड्रिवन बाय योर ओन वैल्यू सिस्टम। व्हाट डू वी मीन बाय अ वैल्यू सिस्टम? What are your values? My values are like being disciplined, waking up early in the morning, doing the hard things first. Okay. Like going to the gym early in the morning, waking up early. Wonderful. Discipline remains by far the most important thing in life. अगर आपको सक्सेसफुल होना है, सेल्फ डिसिप्लिन, इमोशनल इंटेलिजेंस और इनर कंपस की जब हम बात करते हैं, अच्छा IQ सुना आप लोगों ने? क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन या बहुत सब पढ़े पढ़ा है। हाँ बिल्कुल, फिजिकल एज नहीं होती है, मेंटल एज ओवर क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100 होती है। थैंक यू। क्रोनोलॉजिकल एज एज इन योर बॉडी की कितनी एज है, मेंटल एज यानी कि आपके दिमाग की कितनी उम्र है इनटू 100 इज IQ। IQ मींस, अच्छा आप में से यहाँ कितना को लगता है कि आपका IQ लो है? सबको ही लगता है कि मेरे को अच्छा हाई कितना का है? अच्छा लो वाले भी है? लो सोचते हो? नहीं, आपका IQ लो नहीं है, आपका EQ लो है। बहुत अच्छी बात है। देखो IQ अगर उस सेंस में देखें तो लो नहीं है, इसलिए आप यहाँ हो। जो भी व्यक्ति क्लास 8 पास करके 9th में चला था, पास करके, उसका IQ नॉर्मल है, एवरेज है, ठीक है। अब बात करते हैं EQ की। इमोशनल क्वोशंट क्या होता है? हाँ, क्या होती है इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? To be empathetic and to understand others' feelings is the emotional quotient. एम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? कर पाते हो? Like to put yourself in others' shoes. Oh my God! आप मेरे जूते में आ सकते हो? आ सकते हो? फिजिकली नहीं आ सकते, लेकिन हंसने की बात नहीं है। आप में से किसी से भी पूछो कि आप यही मुकेश वो दोगे डेफिनेशन, हंस तो रहे हो आप, बस समझाना आपको भी नहीं आएगा, क्योंकि किताबों में आपको यही पढ़ाया गया है। एम्पैथी पता है क्या, बहुत सिंपल सी चीज होती है। टू अंडरस्टैंड सामने वाला इस टाइम क्या महसूस कर रहा होगा, बस। और ये केवल आपके प्रोफेशन में या मेरे प्रोफेशन में नहीं है, ये इवन सड़क चलते आप में होनी चाहिए। ग्रीन लाइट है और हम एज ए पेडेस्ट्रियन उसे हाथ दे के रोड क्रॉस कर जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमसे 10 सेकंड नहीं वेट हो रहा, पर उसे अब 2 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि उसकी रेड लाइट होगी। तो दैट इज लैक ऑफ एम्पैथी।
इनर कंपास ना हर वक्त चालू रखनी पड़ती है। एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस में सोच पाते, दैट इज लैक ऑफ एम्फेसिस। और अगर हम अपने हर काम को, मैं ये लाइन बार बार बोलूं, कोई भी काम करने से पहले हम ये पूछें मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ। हम लोग कहीं भी किसी भी स्टोर से कोई सामान लेते हैं, ठीक है, एक छोटी सी पर्ची हमारे हाथ में आ जाती है। अब तो बहुत सारी चीजें मेट्रो की टिकट्स वगैरह QR कोड से होने लगी, लेकिन पहले कभी आप टिकट भी निकाल लेते थे, पर्ची निकल आती थी। तो वो कब हमारे हाथ से छूट जाती है हमें पता ही नहीं चलता, पर उससे फर्क पड़ता है क्या? वो एक कागज की पर्ची हमारे हाथ से छूट गई, या एक टॉफी का रैपर हमारे हाथ से छूट गया, या हमने चाय पी और कप हमारे हाथ से गिर गया, क्या उससे फर्क पड़ता है? एक टिश्यू पेपर हाथ से गिर गया, क्या इससे फर्क पड़ता है? हाँ जी, ये तो रोजमर्रा की जीवन से रिलेटेड चीजें हैं ना, इसमें आपको अंदर खंगालने के लिए नहीं कह रही। इनमें से किसी से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, थैंक यू। क्या करोगे इसका? डस्टबिन में डालोगे। ओके, गुड वन स्टेप। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे बताओ। ऐसी कितनी पर्चियां हमारे हाथ से निकलती हैं पूरे महीने में? निकलती है ना? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। ऐसी सारी छोटी पर्चियां पूरे घर में, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जितने भी, उनसे सबकी इकट्ठी करनी शुरू करो। मेरा अपना किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। एक घर से करीब 700 से 800 ग्राम छोटी छोटी कागज की पर्चियां हर महीने निकलती हैं। और हालांकि ये विषय यहाँ का नहीं है, एनवायरनमेंट का विषय है। एनवायरनमेंट के बिना ना हम होंगे, और हम नहीं होंगे तो इनर कंपास का अचार डालेंगे, है ना? तो इसलिए एनवायरनमेंट की बात साथ साथ करते चलेंगे। 1 टन कागज के लिए 26 पेड़ काटने पड़ते हैं, और उस कागज, उन पेड़ों को पल्प बनाने के लिए 22,000 किलोवाट बिजली लगती है, और करीब 22,000 गैलन पानी लगता है। और अगर हम ये सारी पर्चियां इकट्ठी करते हैं और रद्दी वाले को रिसाइकलिंग में देते हैं, तो हम अपनी तरफ से एक पेड़ कटने का पाप घटा लेते हैं। और रिसाइकलिंग में बिजली भी आधी लगती है और पानी भी आधा, और पेड़ एक भी नहीं। तो क्योंकि आपके प्रोफेशन में बहुत सारा कागज यूज होता है, ठीक है ना, तो श्रेडर्स आपके सबके ऑफिसेज में होते हैं। तो प्लीज श्रेडिंग के बाद वो सारा कागज रिसाइकलिंग में जाना चाहिए। जब हम इनर पीस की बात करते हैं ना, इन छोटी छोटी चीजों से आप, जब हमें ये तसल्ली होती है कि आज हमने अपने हिस्से की पोल्यूशन कम कर,
ठीक है। हालांकि पोल्यूशन की बात करना आज के माहौल में बिल्कुल बेकार है। हम जितनी भी करते रहे ये बातें, यूएस ने सब बराबर कर दिया पोल्यूशन, ठीक है ना, पूरा ग्लोबल वार्मिंग उसने एक बार में खत्म कर दिया। तो पर क्या करें, हमें सरवाइव करना है ना, हमें वो करना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम कर सकते हैं। हम जाके लड़ाई नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने देश के और डाउन ट्रेडल के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। पेपर अपने आप में नुकसान नहीं करता, क्योंकि वो मिट्टी में जाएगा, कंपोस्ट हो जाएगा, ठीक है। वापस इनर कंपस पे आते हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम। अच्छा, आप में से पैसा किस किस को कमाना है? पैसा नहीं कमाना यहाँ पे लोगों को। अरे ये तो मैम, ये ऑलरेडी स्पिरिचुअली अवेकेंड लोग हैं, ये तो एनलाइटेंड लॉट है, इन्हें पैसा नहीं कमाना। अरे मुझे भी कमाना है, कमाना है ना, बिल्कुल कमाना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताती हूँ क्यों कमाना है। हेलो, पैसा कमाने के तरीके बता रही हूँ, लोग उठ के जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो बुरा मान गया क्योंकि उन्हें पैसा नहीं कमाना है ना। पैसा कमाना है, नहीं कमाना, सक्सेसफुल होना है, होना है। सक्सेस की परिभाषा बताओ, व्हाट इज मीन बाय सक्सेस? यस, किसने बोला था? अरे क्या हो गया? सक्सेसफुल नहीं होना ना, होना है ना। हाँ तो बताओ, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? व्हाट इज सक्सेस टू यू? Everything that we plan for or we ever dream. यहाँ भी कोई कहना चाह रहा था कुछ, सक्सेस having a lot of amount of money ओके, in the bank account and being a good person and helping others who are not well privileged, those who are not privileged, helping those people and being able to donate money to charity, because being rich you can do a lot of things with that, and you can donate that to charity for the society. बस थैंक यू बस करने के लिए। मुझे लगा ये लिस्ट खत्म ही नहीं होने वाली। देखो, हम सबको पैसा चाहिए, गोल तो सेटिस्फाई हो जाते हो कि मैंने वो हमें बताया गया है पैसे के पीछे मत दौड़ो, है ना। तो क्या करें? एग्जिस्टेंस के लिए पैसा चाहिए, या तो हम जंगल में जाके रहने लगे, कंदमूल खा लें, वहीं झोपड़ा डाल लें, ठीक है ना, और सूर्य उदय के साथ उठें, सूर्यास्त पे सो जाएं, ना बिजली चाहिए, नदी बहती है, पानी भी नहीं चाहिए, है ना। या तो ऐसा जीवन हो जाए हमारा, तो हमें पैसा नहीं चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, या कहें फॉर्चुनेटली हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं, राइट, क्योंकि यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन सक्सेस, माय डियर फ्रेंड्स, इज एज राइटली सेड, हम जो जो भी चाहते हैं वो पालें, वो सक्सेस है। डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ व्हाट ऑल यू वांट? आई डोंट वांट अ लिस्ट ऑफ मुझे आईफोन खरीदना सबसे पहले, या मुझे बड़ी ये वाली गाड़ी लेनी है, ये लिस्ट नहीं है। Dreams are about what you want to do. मोबाइल तो आज आप लोगे 17 प्रो, 19 प्रो, फिर 21 प्रो भी आ जाएगा, है ना। वो तो
Point is, what is your purpose of life? आप कहोगे मैम अभी से बड़ों वाले सवाल पूछ रहे हो, पर अगर अभी आपके पास कोई एक पर्पस ना हो, जीपीएस लगाते हो ना, मंजिल क्या है? तो अगर ड्रीम्स नहीं है, मंजिल नहीं है, तो यू आर क्लूलेस अबाउट where you are going in life. देखिए एक चीज ये है कि मैं यहाँ सब अडल्ट से बात कर रही हूँ. None of you are children now. And adulthood क्या है? What is adulthood? अच्छा अभी इलेक्शन हुए थे, आप में से कितने लोगों ने वोट दिया था? आप सबका वोट बना हुआ है ना? नहीं बनवाया, वो आपकी प्रॉब्लम है. हाँ अभी 19 के हुए हो ना, और वोटिंग एज क्या है? हाँ पर वोटर कार्ड बना है, जब वो नहीं बनेगा तो वोट कहाँ से दोगे? अब ये देखो, ये होता है डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन. आप 18 के हो गए हो, लेकिन आपने अपना वोटर कार्ड नहीं बनवाया. ठीक है, ये आपकी हक भी है और आपका ड्यूटी भी है. और अगर आप वोट नहीं देते हैं ना, तो आप सरकार की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज उठाने के लिए लायबल नहीं है. आपको वो राइट नहीं है. हाँ जी, अगर अपने आप को अंदर से खंगालेंगे नहीं और वो प्रोसेस करना शुरू नहीं करेंगे, आई एम सॉरी, you will not be able to achieve those salary targets which you have in mind. क्योंकि कोई कंपनी आपको केवल पेपर वर्क के लिए पैसे नहीं देगी. Unless you become a thinking individual. ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा ना करने से क्या होगा? जब आप अपने क्लाइंट के लिए सोच सकते हो, तो पहले अपने लिए सोचना शुरू करो. एयर ट्रैवल किया है ना? किया? आई एम श्योर सबने किया होगा. जिन्होंने नहीं भी किया, आपने फिल्मों में देखा होगा. पहला इंस्ट्रक्शन होता है, सीट बेल्ट बांध के रखिए, केबिन में एयर प्रेशर कम होगा तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क गिरेगा. दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क ठीक से लगाइए. आप जिंदा बचोगे तो दूसरों की मदद कर पाओगे. तो अगर आपने अपनी मदद नहीं की तो दूसरों की मदद कैसे कर पाओगे? तो पहले अपनी मदद कीजिए. Know yourself, know your strengths, know your shortcomings. And कोई भी shortcoming हम सब में है. हम में से कोई परफेक्ट नहीं है. अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करो. अगर आप अपने शॉर्टकमिंग्स पे काम नहीं कर रहे हो, पहली बात तो क्या आपको अपने शॉर्टकमिंग्स पता है? और अगर पता है तो उन्हें लिखिए, एक प्लान बनाइए, हाउ टू वर्क ऑन दैम. How many of you read besides your textbooks? Wonderful. क्या पढ़ते हो? मैं फिक्शनल बुक्स ज़्यादा पढ़ती हूँ, मिस्टीरियस एंड क्रिमिनल बेस्ड. ओके, थैंक यू. और कोई नहीं कुछ पढ़ता? रीडिंग हैबिट नहीं है? नॉर्मल इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स. थीम क्या रहता है? थीम बेसिकली ओके, तो
यहाँ 100 लोगों में सिर्फ 2 लोग पढ़ते हैं। और हम ना ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से ना हिंदी फिल्म देखते हैं ना, तो सबसे अच्छा ऑफिस जो दिखता है ना फिल्मों में, वो लॉयर्स का दिखता है। मोटी मोटी किताबें पीछे, है ना। लॉ का मतलब ही होता है, मेरा बेटा तो इसलिए लॉ छोड़ के ही भाग गया, कहता मेरे बस की नहीं है इतनी किताबें पढ़ना। और आप लोगों को रीडिंग की आदत नहीं है। चलिए आप तो ऑनलाइन पढ़ते हो बहुत कुछ। ऑनलाइन कितने लोग पढ़ते हो? भाई आप अपने प्रोफेशन में तरक्की कैसे पाना चाह रहे हो बिना पढ़ाई लिखाई के? पढ़े। हाँ जी, कुछ कहना है? पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, ओके गुड। किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस के लिए सबसे पहले जरूरी है अपडेशन। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो आप भूल जाइए, सक्सेस मिलना मुश्किल है। क्योंकि मैंने कुछ AI सीखा था 4 महीने पहले, आज के लिए मैं PPT बनाने लगी, मैं अब कंफ्यूज ही हो, मुझे अब फिर से अपडेट करनी पड़ेगी अपनी। पहले मैं सिर्फ AI के बिना बहुत अच्छी PPT बना लेती थी, अब AI के चक्कर में मैं और कंफ्यूज हो गई क्योंकि आता नहीं है। तो इसलिए अपडेशन करना बहुत जरूरी है और पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। उसी से आपको नए नए विचार मिलेंगे, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप केवल अगर ये सोच रहे हो कि केवल करिकुलम पढ़ के आपने डिग्री ले ली और सब सेट है लाइफ में, तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि जहां भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उसी एक पोस्ट के लिए 100 लोग आए हुए होंगे जिनके पास आपके ही जितनी क्वालिफिकेशन होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबने क्लियर किया होगा, और वो कंपनी लेगी किसको? जो उसके बियॉन्ड स्मार्ट होगा, जो डिग्री में जो आपने पढ़ा है उसके बियॉन्ड स्मार्ट होगा, उसको लेगी कंपनी। अच्छी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी तो उसको ले लेगी, अच्छा चल ये काम करने के लिए 15,000 वाला मिल रहा है ना, डाल, वो फिर कम पैसे नहीं देगी। 15,000 की स्टार्टिंग लोगे आप, सच्चाई तो यही है ना। तो अपने आप को आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है, पर उस स्ट्रेंथ को क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना है। पहले तो ये जानिए कि अगले 6 महीने में आप क्या चाहते हैं खुद से। आपको जो ये सिस्टम दे रहा है उसके बियॉन्ड आप अपने आप को कैसे ग्रो करोगे। और जैसे इन्होंने कहा डिसिप्लिन, आप अपनी लाइफ में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं आ रही थी ना, वहां से गाड़ी खड़ी करके आ रही थी, तो आई गेस किसी स्कूल के में बच्चों के एग्जाम खत्म हुए होंगे। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहे थे और वो अपने उसका बैग उन्होंने अपने कंधे पे टांगा हुआ था। और मुझे ना इंडियन वॉर वाली मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं, तो अभी देखी थी पीछे, तो बॉर्डर हाँ कुछ ऐसी कुछ थी, है ना। तो मेरे को ना एकदम से वो फौजी नजर आया, अपना कंधे पे वो सामान लाद के चलता हुआ। फिर मैंने कहा ये बच्चे को पढ़ाने भेजा इन्होंने उसके भविष्य के लिए, पर उसका बोझ फादर ने उठा रखा, वो बच्चा हमारा ट्रेन हुआ। फौजियों की ट्रेनिंग देखी है ना कैसी
होती है, फिल्मों में दिखाई है ना बहुत बार कि 20 किलो कंधे पे लादते हैं, फिर 5-7 किलो की गन लादते हैं, और कभी कभी एज अ पनिशमेंट उन्हें बंदा भी ऊपर चढ़ा देते हैं और अब लगाओ 10 किलोमीटर के चक्कर। वो क्यों करते हैं? Are they punishing them? They are not punishing them. They are preparing them for the hard reality of the war front. क्योंकि लड़ाई में उन्हें यही करना पड़ेगा। लड़ाई में उन्हें सोने के लिए क्वार्टर नहीं मिलेगा। लड़ाई के मैदान में वो कीचड़ से गुजरेंगे, गीले कपड़े पहने रहेंगे, तब भी कहीं कोने में जहां झपकी ले सकेंगे वहां सोना पड़ेगा। अपने घायल साथी को कंधे पे उठा के ले जाना पड़ेगा। तो वो स्टैमिना बिल्ड करने के लिए उनकी ये ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिंजेंट होती है। तो क्या आप अपने आप को उस तरह से ट्रेन कर रहे हो लाइफ के लिए? करना शुरू करो। ये जानो आपकी लाइफ में आगे क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। मुश्किलें नहीं है वो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं जिन्हें आपको हैंडल करना है और आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। अच्छा, आई एम श्योर आप लोगों के अपने अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स होंगे, है ना? क्लास के बाद आप लोग हैंग आउट करते हैं। पर आपने अपने वो 4-5 फ्रेंड्स के अलावा कितने लोगों से कनेक्शंस बनाए? कितने लोगों के? कौन ये क्लेम कर सकता है कि वो क्लास के सभी लोगों को जानता है? आपको पता है आगे चल के, थैंक यू, आपको पता है आप लोगों के दिमाग में ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप घूम जाते हैं। और जब मैं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम की बात करती हूँ ना, वही सब घूम जाता है। रिलेशनशिप का मतलब है किन्हीं दो लोगों के बीच का रिश्ता, जो आपका आपके पेरेंट्स से हो सकता है, सिबलिंग से हो सकता है, टीचर से हो सकता है, क्लासमेट से हो सकता है, और फ्यूचर में आपके कलीग से हो सकता है, और एक रिश्ता आपका समाज से है। तो बहुत बार अभी आप में से बहुत लोग उस क्रूशियल टाइम पे जब सोशल कनेक्शंस बनाने थे कोविड से गुजर रहे थे, है ना? 2-3 साल बिल्कुल घर में कैद थे। वैसे कैद नहीं थे लेकिन फिर भी कैद थे, है ना? स्कूल नहीं गए, दोस्तियां नहीं बनी, बाहर घूमने नहीं जा सके। तो फिर जब आप लोग कॉलेज में आए तो मुश्किल होने लगी। ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें लोगों से बात करने में डर लगता है या हिचकिचाहट होती है? Everyone will speak for themselves. देखिए, हमारे यहाँ ना हर चीज को गलत साबित कर देते हैं कि अब उन्होंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की उसके स्टेप तक क्या काम होना है, वो एट अ लॉस हो गए। तो अगर आपको सक्सीड करना है तो केवल वहीं तक सीमित मत रहिए जहां तक आपको बताया गया है। जब मैंने एज अ टीचर मैंने अपना करियर शुरू किया दोबारा से आफ्टर अ गैप ऑफ 6 years, बिल्कुल खाली, साइकोलॉजी का पी भी याद नहीं, कहने को PhD, तो सब पढ़ना पड़ा। अब पढ़ने बैठो तो जब तक
डेस्टिनेशन नहीं है, पढ़ने कैसे बैठे? तो टीचिंग मिल गया, ये टॉपिक पढ़ाना है तो ये पढ़ा। तो तब मैंने रियलाइज किया कि अगर मुझे इतना पढ़ाना है, मुझे इतना जानना जरूरी है, क्योंकि केवल इतना पढ़ के नहीं जा सकती मैं। एक टीचर को उससे कहीं ज्यादा जानना जरूरी है। वैसे ही अगर आपको अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना है तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे कहीं ज्यादा जानना जरूरी है। अब मैं आगे कुछ बोलूंगी नहीं, केवल आप मुझे व्यूज दोगे और उस पे मैं जवाब दूंगी। अब आप लाइफ को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, इनर पीस को लेके जो क्वेश्चंस पूछोगे मैं केवल उनका जवाब दूंगा। Do we have a moderator here? क्वेश्चन आया कि सक्सेसफुल पर्सन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया कि घमंड जिसे हम बोलते हैं, उसमें इतना घमंड आ गया कि मेरे को इतना सब कुछ पता है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें से और बड़ा कोई और नहीं हो सकता, हमें सब कुछ पता है। तो आप क्या कह सकते हो कि वो दूसरों को ब्लेम करेगा या नहीं करेगा? वो अपने किसी को उंगली उठाने देगा अपने ऊपर? देखो ऐसा है बेटा, जो आप कह रहे हो ना, या आप कह रहे हो आफ्टर अ पर्सन हैज बिकम सक्सेसफुल, और सक्सेसफुल भी सक्सेस आप नाम रहे हो बहुत ही वर्ल्डली चीजों में, इन टर्म्स ऑफ फेम, मनी, ठीक है। अब वो उस पायदान में रहेगा, वो अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, वो सक्सेसफुल और होने की कोशिश नहीं कर रहा, वो केवल अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है, वो कुछ नहीं करेगा, उससे नहीं है। मेरी आप ना यहाँ नहीं हो, आप इस सीढ़ी पे हो, मैं सीढ़ी से यहाँ तक कैसे पहुँचना है इसकी बात कर रही हूँ। वहाँ जाके आपकी ट्रेनिंग अलग है लोगों की, सीढ़ी से यहाँ कैसे पहुँचना है इसकी बात कर मैम। जैसे आपने बोला कि लाइक यू नीड टू लाइक जस्ट सेल्फ अवेयर, आपको जानना चाहिए। मैम हम सबने देखा है कि लाइक साधु संत होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी अपने आप को जानने में, बट उससे अपने आप को नहीं जानता। तो हाउ वी कैन से कि लाइक वी नीड टू लाइक सेल्फ अवेयर अपने आप को जानना। तो मतलब हम कोशिश भी ना करें? मैम वी कैन ट्राई। हम देखो ऐसा है बेटा, स्काई इज द लिमिट, अब स्काई की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। साधु संत जो है ना वो उस लेवल पे है, हम यहाँ है जाना, ठीक है। अब आप Don't you think that this life is having so much more work from a life of the हाँ, लाइफ तो कम है जानने के लिए, पर क्या आप जान रहे हो? पॉइंट ये है। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास अपने गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स और गोल्स को पाने का रोड मैप है और आपके पास एक्शन प्लान है, you are there.
आएगा ये। तो there's 9 moves, so to say, है ना? तो अगर हम theoretically जाएं, यहाँ बहुत सारे लोग सीखने के लिए नहीं बैठे हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैंने सुना था नर्सरी के बच्चों का अटेंशन स्पैन आधे घंटे का होता है और इस स्टेज पे आके आप लोगों का क्लास का पीरियड 50 मिनट्स का होता है। Why? Because you're supposed to have a longer attention span. So emotions जो हैं, they are related to our thoughts. Okay? अब जैसे आप यहाँ बैठे हो, आप बोर हो रहे हो, ठीक? क्योंकि आप बोर हो रहे हो, क्या बकवास कर रही हो यार भैया, है ना? ये थॉट आया, है ना? अब इस थॉट के साथ एक इमोशन आ गया, तुम जैसे बकवास बोला ना, तो आई एम काइंड ऑफ एजिटेड। ये मेरी मुसीबत है, मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है, ठीक है? लेकिन आप चुप बैठे और नॉट कर रहे हो। दिस इज इमोशनल रेगुलेशन। You are regulating your anger and agitation. Socially display नहीं कर रहा अपना emotion. So, emotional intelligence is about self-awareness, knowing what I want, what I'm feeling. Emotional regulation is regulating your emotions. Right? Number 3, social skills. वह भी आप यूज कर रहे हो। गुस्सा तो आ रहा है लेकिन मैं कुर्सी तोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है? उसके अलावा मोटिवेशन। आई एम सिटिंग हियर बिकॉज इट इज गोइंग टू benefit me in some way, whatever way your reason for the benefit. So this is emotional intelligence. When you are able to understand your own emotions and also the emotions of others, that is emotional quotient, emotional intelligence, right? And आपके प्रोफेशन में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट को समझने के लिए, और यूज दूसरी तरह से भी कर सकते हो अपने ओपोनेंट को पछाड़ देने के लिए, ठीक है? दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द नीड्स, सामने वाला चाहता क्या है, और उस हिसाब से अपना बिहेवियर मॉडिफाई करता हूँ। That is emotional intelligence. हाँ जी। बाकियों को रिकॉर्डिंग हेलो क्वेश्चन। इस एज में बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, हम छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने लगते हैं कि अब एग्जाम आ रहा है या बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे रहते हैं। सो व्हाट विल बी योर एडवाइस, टॉप 3 एडवाइसेस यू विल गिव हमारी एज को लेकर कि हमें ये करना चाहिए अपनी डेली लाइफ में, ये हैबिट लानी चाहिए जिसकी वजह से हम कम स्ट्रेस लेंगे या ऐसा कुछ। अब अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन तो सबको ही पता है, या मेडिटेशन जो आपको बताया जाता है ना, अगर इतना आसान होता करना तो हम सारे साधु हो गए होते, ठीक है ना? इट्स नॉट अबाउट मेडिटेटिंग, इट इज अबाउट सेंटरिंग। अपने दिमाग को सेंटर में लाना है जिससे वो फोकस कर सके। बता दें। देखिए, अब आपने कहा कि आपकी एज में, आई एम अज्यूमिंग यू आर ऑल अबव
18, meaning you are all adults, meaning you are all supposed to be responsible people, individuals. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हो कि इस देश को कौन चलाएगा वो डिसीजन आप ले सकते हो। पर यस नहीं है ना, फायदा नहीं है उसका कुछ, क्योंकि अभी तो आपको ये नहीं पता मुझे अपना जीवन कहाँ ले जाना है। So for people your age, आपको पता है, अच्छा चलिए I go a little into history in this regard. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुई, उससे पहले स्कूल कॉलेज इतने नहीं होते थे। Can you all focus please? ये आपकी किताबों में भी मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे स्कूल कॉलेज इतने नहीं होते थे, बेसिक एजुकेशन होती थी, उसके बाद 14 साल का व्यक्ति काम पे लगा दिया जाता है। ठीक है, गांव में अब तो स्कूल पहुंच गए हैं तो इसलिए 10वीं 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, नहीं तो सब एंशिएंट सिविलाइजेशंस में सब जगह सब कल्चर्स में 14 साल के बाद बच्चे काम करते हैं। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो मशीन्स में काम करना, फैक्ट्रीज में काम करना, ये देखा गया 14 साल के बच्चे के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं जी 18 से पहले ये बच्चे अभी इतने मजबूत नहीं है कि ये मशीनों पे काम कर सकें। तो 14 से 18 के बीच में उन्हें खुला छोड़ दिया है। अब ना तो वो बच्चे हैं ना वो बड़े हैं। अब ये 4 साल जिन बच्चों को सही दिशा मिल गई वो कुछ कर गए, और जिन्हें दिशा नहीं मिली वो ड्रग्स को कर गए। तो जहां तक आप लोगों की एज का सवाल है, आप वो एज क्रॉस कर चुके हो जब आपको अपनी दिशा पकड़नी थी, आप उस एज में हो। तो किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए 3 चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपने कहा आप लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हो? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? नहीं तो सोशल मीडिया ने क्या किया? अब प्रोक्रेस्टिनेशन पे आती हूँ मैं। प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे अव्वल तो गोल्स ही नहीं है, और गोल्स हैं, मिल गए नहीं मिले कोई बात नहीं, कुछ और देखिए। यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर गोल्स। द डे योर गोल्स बिकम a matter of life and death, you will stop procrastinating. जब आपके लिए अपने गोल्स को पाना जरूरी हो जाएगा, दुनिया की कोई ताकत आपको अपने गोल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आपकी एज के लोगों के लिए 3 बेसिक लाइफ स्किल्स। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट वेल, ईट ऑन टाइम, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, स्लीप ऑन टाइम। योर बॉडी इज योर टूल टू एनी सक्सेस। आपको आपके पेरेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी सारे रिसोर्सेज दे सकती है, पर अगर आप हेल्दी नहीं हुए तो आप एक भी रिसोर्स यूज नहीं कर पाओगे।
तो सबसे पहले तो अपने खाने पीने का ध्यान करिए, घर से टिफिन लाइए, घर का बना खाना खाइए। नहीं ताली मत बजाओ, यहाँ आपकी माएँ नहीं है जो खुश हो जाएगी मेरी बात सुन के, आपकी तालियां सुन के। ये आपको चेंज लाना है अपने बिहेवियर में। जो केमिकल युक्त खाना आप लोग खा रहे हो ना, उससे आपके दिमाग अनरेस्ट में जा रहे हैं। जो आप लोग जिसे फिर स्ट्रेस परसीव करते हो। एक्सरसाइज इज अ मस्ट। एक्सरसाइज मरते दम तक जरूरी है। Not because we want to be bodybuilders. एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता है। एक्सरसाइज का मतलब होता है अपने पूरे बॉडी के सिस्टम्स को एनर्जाइज करना, डिटॉक्स करना, ब्लड सर्कुलेशन बेटर करना। ये पर्पस होता है एक्सरसाइज का। जो हफ्ते में एक बार 2 घंटे जिम करने से नहीं होता, रोज करना होता है। और तीसरी बात, गेट इनटू द हैबिट ऑफ रेगुलराइजिंग योर डे। आपका सबसे बड़ा एसेट गिवन टू यू बाय नेचर इज व्हाट? टाइम। और सबके पास बराबर है। किसी के पास 1 मिनट ज्यादा या 1 मिनट कम नहीं। पर एक सक्सेसफुल और नॉट सो सक्सेसफुल पर्सन में फर्क केवल इतना है कि वो अपने 24 घंटे से क्या करता है या करती है। प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए अपनी। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? नोइंग व्हाट्स गोइंग ऑन द सोशल मीडिया और डूइंग व्हाट यू रियली वांट टू डू टू अचीव योर गोल। और उसके लिए सबसे पहले, नवरात्र भी चल रहे हैं, अच्छा टाइम है फास्टिंग करने का, तो थोड़ा सा इंटरनेट फास्टिंग कर लो। देखो भाई, मैं एक चीज जानती हूँ, मैं पीएमओ में नहीं बैठी। मैंने 4 घंटे फोन नहीं देखा ना, इंडो पाक बॉर्डर पे कुछ नहीं होने वाला। और जो हो भी रहा होगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यूएस ने इस बीच में ईरान पे कितने बम डाल दिए होंगे, या ईरान ने कौन सा ऑयल टैंकर उड़ा दिया होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मुझे क्यों सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना? क्रिकेट का लेटेस्ट स्कोर मुझे जानना क्यों जरूरी है? उससे वो बॉलर की एफिशिएंसी सुधर जाएगी क्या? When you don't know what your goals are, then who is driving your inner compass? आपकी इनर कंपस ना, वो नॉर्थ कभी यहाँ जाता है, ईरान। अरे सचिन तेंदुलकर, अरे आज उसकी लाइफ में क्या हो गया? अरे आपकी ना लीडर ऐसे 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 घूमे ही जाते। हाँ जी, आपने बोला मेरे को ये नहीं पता होना चाहिए इंडो पाकिस्तान का, मेरे को ये सब कि कुछ न्यूज़ चैनल्स का हमें पता होना चाहिए। सारा दिन क्यों पता होना चाहिए? सारा दिन नहीं पता होना चाहिए, बट when you are interacting with someone, when you are in group, तो हमें कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं वो लोग, क्या। एक बात बताओ, टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा बड़े साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम हैं। तालियां नहीं चाहिए।
को अच्छा लगेगा कि आप में से कुछ लोग मेरे पास प्लान लेकर आए, मैम ये हमें करना है, अब ये कैसे करें ये बताओ। इन तालियों की गूंज मुझे उस लिस्ट में दिखेगी। अब आप जो कह रहे हो कि हाँ हमें अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है, दुनिया में देश में क्या चल रहा है, बिल्कुल जानना जरूरी है, पर उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। आपको अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कुछ टॉपिक्स चाहिए। यस, यू नीड टू नो कि आईपीएल की कौन सी टीम में किसको ले लिया, किस टीम ने जीत लिया, कौन सी टीम हार गई। ठीक है, आपको ये जानना जरूरी है कि ईरान यूएस वॉर में क्या हो रहा है, इजराइल की क्या पोजीशन है, राइट। बट उससे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि 6 महीने बाद मैं क्या खड़ी होंगी। जरूरी है, मैं तो उसका जवाब मैं और जो पोजीशन मुझे चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना है। हाँ, प्लीज। आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि आपकी एज में डिसीजन मेकिंग इज अ बिग चैलेंज। हैंड रेस कर ली। तो जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ लाइफ में ना हमेशा कम से कम 2 ऑप्शन होगा। अभी भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ होना या यहाँ ना होना। यहाँ हो तो 2 ऑप्शन है, सुनना या ना सुनना। ऐसे ही जब भी हमारी लाइफ में ये द्वंद आता है कि क्या करें कि ना करें, ये कैसे मुश्किल आएगा, है ना। तो पहले तो जो अपने ऑप्शन है वो लिखो, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। फिर पूछो ये करके क्या होगा, ये करके क्या होगा। फिर आप ये देखो कि किसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है, फिर वो अपनी पर्सनल चॉइस पे आप डिसीजन लोगे। बहुत बार जब हम फंस जाते हैं, हम चाहते हैं दूसरे हमारे फैसले करें। बहुत बार दूसरे अपने हमारे लिए फैसले लेंगे भी, लेकिन जरूरी नहीं है जो फैसले दूसरे हमारे लिए लें वो हमें अच्छे लगे। तो बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योरसेल्फ कि अगर मैंने फैसला गलत भी लिया तो कोई बात नहीं, उस गलत फैसले के बाद भी ऑप्शन लाइफ में कुछ भी सही और गलत नहीं। आप में से बहुत सारे लोग 11th-12th में कुछ और सोचते होंगे, शायद लॉ आपकी ऑप्शन में नहीं रहा होगा, पर जब बहुत सारे दूसरे दरवाजे हमारी कोशिशों के बावजूद बंद हो गए, तब हमें ये एक सूटेबल और रीजनेबली गुड ऑप्शन लगा होगा, राइट। हम बहुत बार अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में पाएंगे जहां वी आर नॉट देयर। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा? Thank you so much everyone. And now to formally express our gratitude, I now invite
On behalf of organizing team of Spiritual Club Pockets, I extend my heartfelt gratitude to all who made this occasion truly memorable in Bangalore. Respected guests, faculty, respected esteemed guests, Dr. Aradhana ma'am, and our faculties, Dr. Manisha ma'am and Dr. Arpita ma'am, and my dear friends, we are deeply thankful to you ma'am for this extremely loving and such inspiring work with us. Your insight have truly enriched this event. Thank you so much ma'am. And I would also like to express my gratitude and thank you to Arpita Dubey and Purna Gaur for organizing this event for us. Thank you. Now I request Dr. Arpita Sehgal ma'am to kindly give the token of thanks to ma'am. मैम Ma'am, please be seated. And with this, we come to the end of today's session. Thank you everyone. Have a wonderful day ahead. We request Dr. Aradhana ma'am to please have a group picture with the whole team. Everyone kindly fill the form. Kindly fill the form. वो स्कैन करके जाना सारे ठीक है भाई वो आ जाएगा स्कैन करके जाऊंगा भाई पहले खड़े हो जाओ मैम आप भी एक